So good evening, everyone. Is this better? Is this screen is fine? Tell me, Varsha and Chirag, the screen sahi hai? Okay, awesome. Right now, as I said, that we will be studying something extra also in this chapter. Okay. Now, when you talk about something extra, right? So obviously, I will be covering all the concepts that is in our syllabus. हम लोगों ने पढ़ रखा है वो revise करेंगे. Plus, on the top of that, right, we will talk about some other concepts which might be used in higher classes. ठीक है? Got it? Okay. Now let me ask you, what do you know about gravitation? Like basic thing, है ना? First, whenever we talk about this chapter, okay, the first thing is said theory, basic theory, right? What is this gravitation? ये है क्या? Tell me, anyone, you guys can speak, right? Tell me. Okay, right. So I guess say, sir, it is a force, है ना? Awesome. So it is a force. So it is a force. ठीक है? Right? Force between, very good, two objects. Awesome. So I can say that, okay, sir, it is the force between, है ना? Force between two masses, right? Force between two objects, right? Having some mass. That's the basic concept, right? Everyone, this is something that we already know. Okay, है ना? So think about it. Suppose this is mass m1. This is something that all of you know, right? So I'm just revising this. ठीक है ना? So this is mass m1, this is mass m2, and the center are distance apart, right? So I can say that, sir, these two will attract each other. These two will attract each other, है ना? And that force of attraction is called as gravitational force. That force of attraction is called as gravitational force, right? And when you talk about gravitational force, it is always attractive in nature. Yes or no? For example, the mass m1 will try to attract m2, and mass m2 will try to attract m1. Yes or no? Very good, Anvita. है ना? Now, sir, we know that this force is directly proportional to product of masses. I know this. It's not directly proportional to individual mass, but the product of mass. Okay, which means even if one mass is bigger and other mass is smaller, right, the force may be more than two medium masses, right? And it is inversely proportional to square of distance between them. These are the concepts that we already know. ये तो हमें पता है, sir. है ना? ये हमें पता है, sir. Right? These are things that we know, right? Now, if we club them, so it is F is equal to G m1 m2 by r square, right? So ये सर क्लियर है, हमें इसमें दिक्कत नहीं है. ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है, फोर्स होता क्या है, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ये हम सबको आता है कि नहीं आता है? यस सर. है ना? वेरी गुड. चेतन, आर्यन, आता है ना? राइट? ओके, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, ये होता है ना? राइट, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, ग्रेविटी है क्या है. वेरी गुड. एंड जी, व्हाट इज जी? जी इज कॉल्ड योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इट इज अ ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट. इसका वैल्यू क्या होता है? 6 पॉइंट, यस करेक्ट श्योन, 6.67 टू द पावर -11, है ना? राइट. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, ये हमने पढ़ा अब तक. नाउ हैव यू एवर थॉट, राइट, कि बस ये जो फोर्स होता है, फोर्स के अलावा और क्या
और क्या पैरामीटर हो सकता है? Now let me ask you one thing, right? Let me ask you one thing. Suppose you are sitting in a classroom, okay? In a classroom and teacher is teaching to you, right? So can someone who is in the office hear the voice of the teacher? No, sir. No, right? Basic common sense, ना? Basic common sense का सवाल मैं पूछ रहा हूँ, right? So can I say that, sir, the area, right, up to which the voice of teacher can reach is limited to the classroom? Yes or no? Right? Yes, sir. So there's a concept called as field. Okay, there's a concept called as field. Okay. So what is field? So usually I'm just taking a very basic definition of field. Okay, it's basically the area, or not the area, actually it's the space. Okay, saying area would be wrong. This is the space. Okay, space around any object. Okay, any object up to which it will have its effect, up to which it will have its effect. Got it? Yes or no? Right, guys? Is my handwriting really bad? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Like yes, it is bad, और yes समझ में आ रहा है? Sir, दोनों. दोनों. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड रोहित. ठीक है, I'll try to write it better. ठीक है? Okay. Now, so have we ever noticed any kind of field around us? Tell me. Yes, sir. अब जैसे तुम रूम में गर्मी के दिन एसी ऑन करके तुम बैठ जाते हो, है ना? राइट? तुम एसी ऑन करके बैठ जाते हो, तो तुमको क्या फील होता है कि थोड़ी देर बाद पूरा रूम ठंडा हो जाता है? यस और नो? Yes, sir. है ना? Yes, sir. So can I say that, okay sir, there is something called as temperature field over there due to AC? Yes or no? Right? है ना? Correct. Now in the same way, जैसे तुमने एग्जांपल दिया exactly मैग्नेट, राइट? सो अगर तुम एक मैग्नेट रखते हो और मैग्नेट के आसपास, है ना, कोई आयरन नील रखते हो या दूसरा मैग्नेट रखते हो, ओके, सो ऑब्वियसली नाउ थिंक अबाउट इट, क्या वो जो मैग्नेट है वो आयरन नील को या दूसरे मैग्नेट को किसी भी डिस्टेंस से अट्रैक्ट कर लेता है क्या? थिंक अबाउट इट. मान लो 1 मीटर दूर रखा है, अट्रैक्ट कर लेगा क्या? नहीं ना, No, राइट? बिकॉज फील्ड बहुत ही कम होता है, इफेक्ट बहुत ही कम होता है. यस और नो? राइट? ओके, तो whenever we talk about field can be, है ना, yes somewhat, right? There can be electrostatic field also. वही तो बोल रहे ना, field is a generic concept, है ना? राइट? अब अगर तुम चार्ज के हिसाब से बोलो, चार्ज के लिए हिसाब से बोलो, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो जाएगा. सो if it is due to mass, if it is due to mass, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कौन सा फील्ड बोलेंगे? wait. Gravitational field ना, right? If the force is due to mass, then it is your gravitational field. फील्ड की बात हो रही है यहाँ पे, फील्ड की बात हो रही है कि नहीं? राइट? should I change the thickness? Okay, now if it is charge, तो क्या हो जाएगा वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. Got it? If it is due to charge, then it is called your electrostatic field, है ना? And if it is due to magnet? Magnetic field. Correct, magnetic field. Very good. Now if I ask you this, do you think that this field, right, is a real quantity or just hypothetical quantity? Like हम लोगों ने बस मान लिया कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके कारण वो अफेक्ट होगा. साउंड ऑब्जेक्ट नहीं है ना. थिंक अबाउट इट. डेफिनेशन क्या है?
राइट, अराउंड एनी ऑब्जेक्ट, है ना, समझ में आया कि नहीं, राइट, है कि नहीं। सो फील्ड इज अ हाइपोथेटिकल क्वांटिटी, मतलब ऑब्वियसली हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कुछ होता होगा। थिंक अबाउट इट, जब तुम मैग्नेट रखते हो, है ना, जब हम, राइट, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट शिवांश, फ्रीक्वेंसी is different ना, frequency is basically a number of right vibrations per second, ठीक है, right, okay, मैं फॉर्मूले के साथ बताऊंगा तुमको समझ में आएगा ज्यादा, ठीक है। now अब एक चीज बताओ, think about it, assume okay that if I'm having a mass, ये एक mass है m1 और ये एक mass है m2, think about it, right, this mass is m1, this mass is m2, है ना, we know that m1 will attract m2, yes or no, Yes, sir. बट क्या M1 से हाथ निकल के M2 को खींच लेगा क्या? ऐसा होता है क्या? Tell me. No, sir. नहीं ना, ऐसा नहीं होता है ना कि M1 से हाथ निकला, राइट, और वो M2 को खींच लिया। थिंक अबाउट इट, ऐसा पॉसिबल है क्या? No, sir. नहीं ना, राइट। सो व्हाट वी से इज दैट M1 के कारण कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा होगा M2 पे, यस और नो, right, yes or no. So I can say that, sir, due to M1 there must be some kind of field, due to M1 there must be some kind of field which right exert force on M2, हाँ या ना, think about it, हाँ या ना, right। तो अगर मैं पूछूं कि ठीक है M2 पे फोर्स अगर लग रहा है, if there is a force, okay, if there is a force on M2 due to M1, तो फील्ड किसके कारण जनरेट होना चाहिए? ग्रेविटेशनल फील्ड। नहीं, मतलब कौन से मास के कारण? ऑब्वियसली इट विल बी ड्यू टू ग्रेविटेशन, राइट, कौन से मास के कारण? m1, वेरी गुड अमृत, है ना, बिकॉज अगर फोर्स, इफ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन m2, राइट, इफ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन m2 ड्यू टू m1, लिखो, if force act on m2 due to m1, right, है ना, field will be due to, field should be due to, नहीं, ग्रेविटी तो उसको फील्ड का नाम है, उसको उसका नाम है ग्रेविटी, ठीक है, हम बताएंगे उसका नाम है। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, किस ऑब्जेक्ट कारण होगा? m1, है ना, तुमने लिखा ना m1, राइट, एंड दिस फील्ड इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड द फील्ड इज called as gravitational field, gravitational field। सबको समझ में आ रही है? सबको क्लियर हो रहा है? बाउंसर किसी से नहीं जा रहा ना? यस और नो? टेल मी, यस और नो, क्लियर, सबको क्लियर है? हाथ उठा लो। Yes, sir. चलो, ऑसम, वेरी गुड। चेतन? राइट, यस शिवान, सिमिलरली इट विल बी m2। नाउ अगर तुमसे पूछा जाए, if there is a force on m1 due to m2, right, if there is a force on m1 due to m2, then obviously उल्टा हो जाएगा ना, then in that case field will be due to m2 and force will be on m1, okay। So if I have to write this in formula, अभी तक हम लोगों को सिर्फ एक formula पता है, yes or no, till now we just know one formula, what is that formula? So ये F is equal to g m1 m2 by r square, this is the formula that we know, right, yes or no? So now can I say that, sir, आप जो बोल रहे हो सर, ये जो field है, field is actually force per unit mass, yes or no, force on any mass per unit mass को ही आप field बोल रहे हो, yes or no, हाँ या ना? Don't you think logically तो ये होना चाहिए ना? Tell me, yes or no, right, हाँ या ना?
थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, राइट? और हम लोगों ने फील्ड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कभी भी? टेल मी, हैव वी स्टडीड अबाउट फील्ड? नो सर। पक्का श्योर? वर्षा, हैव वी स्टडीड अबाउट फील्ड? यस और नो? यस करेक्ट, है ना? now if you think about it, सर थोड़ा सा मैं कॉमन सेंस लगा रहा हूँ, राइट? so now let us try to find the formula first. so force का फॉर्मूला क्या था? what is the formula of force, सर? और यहाँ पे मैं किसके कारण देख रहा हूँ? suppose I want to find like this gravitational field due to m1, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? m2 होना चाहिए, because force तो m2 पे लग रहा है ना? so it will be what? g m1 m2 by r square into m2. so can I say that sir m2 m2 will get cancelled? can I say sir ये m2 और ये m2 cancel हो जाएगा? so I will be left with what? I will be left with g m1 by r square. yes or no? right? obviously sir, अगर मुझे m1 के कारण फील्ड चाहिए तो मास तो m1 ही होना चाहिए ना? हाँ या ना? राइट? ओके, ना थोड़ा सा मैं दिमाग लगाता हूँ सर, थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूंगा. अगर मैं इसको रीअरेंज करूंगा, थिंक अबाउट इट, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ सर? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू फील्ड. हाँ या ना? हाँ या ना? यस और नो? जनता जवाब देगी यस और नो. और कहीं भी, कहीं हम लोगों ने बचपन में फोर्स का एक और फॉर्मूला पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक और फॉर्मूला पढ़ा है. करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. mg, mg, यस और नो? करेक्ट. तो सर अगर मैं इसमें mm कैंसिल कर देता हूं, थिंक अबाउट इट, राइट? जस्ट थिंक अबाउट इट सर, ये m है ना? और ये m है. अगर इसको मैं कैंसिल कर दूं, राइट, इन दोनों m को मैं कैंसिल कर दूं, ठीक है, राइट, इन दोनों m को मैं क्या कर दूं? कैंसिल कर दूं, कैंसिल कर दूं. तो क्या आ रहा है सर? फील्ड. सर फील्ड तो कुछ और नहीं है सर. जो हम लोग फील्ड पढ़ रहे हैं, फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं, वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है. तो बेवकूफ बन गए हम लोग. यस और नो? ये तो हमें पता था. पता था कि नहीं पता था? बताओ, पता था कि नहीं पता था? ऋषभ, निखिला, रोहित, अब बताओ, फील्ड के बारे में हमें पता था कि नहीं पता था? यस सर। है कि नहीं? तो टेक्निकली, राइट, टेक्निकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज काइंड ऑफ फील्ड ओनली, है ना? ना अब बताओ, यहाँ पे फोर्स जो है, शिवांश, फोर्स किस पे लग रहा है? फोर्स अब खुद सोचो ना, तुम फोर्स जिस पे लगाते हो उसका मास आता है ना? यस और नो? है कि नहीं? समझ में आया ना? थोड़ा सा ना, राइट? सोचो, मान लो, राइट, फील्ड किसी कारण जनरेट हो रहा है, फील्ड जनरेट हो रहा है m1 के कारण. तो अगर फील्ड m1 के कारण जनरेट हो रहा है तो फोर्स किस पे लगेगा? अब कोई खुद से खुद पे तो नहीं लगाएगा ना, है कि नहीं? डजंट मेक सेंस, राइट? है कि नहीं? क्लियर हो रही है? क्लैरिटी मिल रही है? यस सर। ठीक है. सो आई गेस अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया. तुम लोगों ने जी का फॉर्मूला नहीं देखा था ना, जी का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं देखा था ना. तो कैन यू से दैट सर, तो आप बोलना चाह रहे हो कि जी का फॉर्मूला जो है, हम लोग जो जी पढ़ते हैं 9.8 9.8, राइट, अर्थ के लिए, उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर. सर ये फॉर्मूला होता है सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का. हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है कुछ? बताओ, सबको समझ में आ रहा है? हमने ये नहीं पढ़ा था ना? हमने ये पढ़ा था क्या? टेल मी, डिड वी स्टडी दिस? टेल मी, डिड वी स्टडी दिस? यस और नो? यस, राइट, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना? ओके, सो g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर, है ना? ओके, वेरी गुड. सो एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? रेज योर हैंड. एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? यहाँ पे कोई भी डाउट है? ओके, ना एक चीज बताओ, फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है, फोर्स इज अ वेक्टर और स्केलर? फोर्स इज अ वेक्टर और स्केलर? वेक्टर, ऑसम, है ना? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो फील्ड बताओ, फील्ड शुड बी वेक्टर और स्केलर?
field is also Vector. vector quantity. Correct, field is also vector quantity, है ना? Clear है, right? Okay, now एक और चीज होता है ना? Okay, right? Now next topic would be, now I know what is acceleration due to gravity. Next topic would be what is a variation, है ना? Right? Variation in G, है ना? Due to multiple factors. अब बताओ जो acceleration due to gravity वो किस किस factor पे depend करता है? Tell me. G depends on what all factors? So first, G depends on mass, of planet, right? G depends on distance from the center of the planet. Yes or no? हाँ या ना? ये दो चीज पे डिपेंड करता है, right? Because Yes, when you sir. talk, है ना, अगर planet ही अलग हो गया तो अलग हो जाएगा. तो अगर सवाल पूछा जाता है, अगर कभी सवाल पूछा जाता है, मान लो कि एक planet X है और एक planet Y है ना? राइट? प्लैनेट एक्स का मास है m1, प्लैनेट y का मास है 2m1. प्लैनेट एक्स का रेडियस है r1, प्लैनेट y का रेडियस है r1/2. तो बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन g1 एंड g2? कैन आई डू दैट? एवरीवन बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन g1 एंड g2? जल्दी जल्दी, यू हैव 5 मिनट्स, जल्दी जल्दी. रिलेशनशिप बिटवीन g1 एंड g2. ओके, वेरी गुड ऋषभ. ओके श्रेया, चेक कर लो एक बार ऋषभ. Okay, very good, Shivansh. So I'm asking G1 is to G2. G1 by G2. Gauss relation की relation क्या है? Correct. So when you talk about G1 क्या हो गया? See, G1 is equal to capital G. Capital J is constant. ठीक है? Very good. M1 is M1 by, ध्यान दो, R1 is R1 square. Now when you talk about G2, sir, G2 is equal to G 2m1, mass m2 is 2m1 by, this is r1 by 2 का होल स्क्वायर. तो ये जो है ये उल्टा क्या हो गया सर? इट इज 8gm1 by r1 square. And I know that so gm1 by r1 square is equal to what? g1. So g2 is equal to 8g1, है ना? तो g1 by g2 is 1 by 8. So 1 by 8 is the correct answer. Very good. तो ऐसे सवाल बन जाएंगे, ऐसे सवाल बन जाएंगे. अमृत समझ में आया तुमको? अमृत 1 by 8 हो गया ना? आकाश करेक्ट है, शिवांश करेक्ट है ना? वर्षा करेक्ट है. गॉट इट? आदर्श, आकाश, अमृत, अन्विता, भूमिका, दोनों भूमिका, इंचरा, दीपा, राघवी, मोहिल, समर्थ, सानवी, संकेती, सुशांत. Yes, sir. चलो ऑसम, वेरी गुड, है ना? चलो, so ये तो क्लियर हो गया सर. ये तो है ना? You didn't get it, Shafan? What you didn't get, Shafan? Tell me. Which concept? G square is equal to G2. देखो G1, G का फॉर्मूला समझ में आया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला समझ में आया? इट इज कैपिटल G which is a constant into mass of the planet by radius of planet का होल स्क्वायर. यस और नो? है ना? ये समझ में आया तुमको? इज दिस क्लियर? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? है ना? So here it is given that, right, it is given that this is planet X, है ना? planet X, and this is planet Y, right? Mass of planet X is m1, mass of planet Y is 2m1, radius of planet X is r1, radius of planet Y is r1 by 2. तो फॉर्मूला में पुट कर दिया मैंने. So g1 is equal to capital G m1 by r1 square. और यहाँ पे m2 की जगह 2m1 है, right? Because this is nothing but m2 and this is nothing but r2.
So technically it should be gm2 by r2 whole square, right? So instead of m2 I put 2m1, and instead of r2 I put r1 by 2 whole square. वो तो r1 by 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, r1 by 4, r1 square by 4, और 4 जो नीचे है डिवीजन में वो ऊपर चला जाएगा ना. आई होप यू नो दिस, है ना. 2 डिवाइड बाय 1 by 4 will become 8 only, है ना. गॉट इट शेफान? Yes. हाँ चलो, वेरी गुड. यहाँ पे 8gm1 by r1 आ गया, r1 square आ गया. And we know that sir, this whole term, right, this whole term is nothing but g1. देखो यहाँ से g1. So g2 is equal to 8g1. So g1 by g2 is 1 by 8. Clear है? Okay. Any issues in that? Shafan? Yes, sir. चलो, okay, very good. Now, तो ये हो गया सर, अगर planets ही अलग अलग हो गए, है ना, ये अलग अलग planets हैं, right? So ये हमें समझ में आ गया सर. This is the case when we have two different bodies, two different planets. Okay. Second case, right? Variation of G with depth, with height. पहले करते हैं height, है ना. तो अब बताओ, हाइट जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा कि ज्यादा होगा? टेल मी. सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, कम होगा? पक्का श्योर? खुद सोचो ना सर, ऊपर जा रहा है सर, रेडियस बढ़ रहा होना चाहिए ना, रेडियस तो बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, लॉजिकली सोचो ना, राइट? सो विथ हाइट, सपोज इट इज h height above the earth surface, h height above earth surface, above earth surface, earth surface. Above earth surface, earth surface. Any issues in that? Tell me, any issues in that? है ना. Now अब बताओ, अब जो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग g dash लिखते हैं, g dash, because we know at on the earth, इसको मैं लिखता हूं पहले. ये h surface means, I'll just draw a diagram, just give me a minute. Okay. Right, suppose we have this earth, है ना, ये earth है. तो यूजुअली ये अर्थ का रेडियस मान लो r है, कैपिटल R. तो यहाँ पे जो ग्रेविटी होता है दैट इज योर नॉर्मल जी. नॉर्मल जी, इसको जी नॉट बोल रहा हूं मैं. वो क्या होता है? जी m बाई r स्क्वायर, है ना. यस और नो ना. इसके ऊपर मान लो, अगर इसके ऊपर जा रहे हैं, इसके ऊपर हाइट h तक जा रहे हैं, मान लो यहाँ तक जा रहे हैं हम. थिंक अबाउट इट, इसके ऊपर हाइट h तक जा रहे हैं, है ना. इसके ऊपर हाइट h तक कैसे जा रहे हैं? दिस इज हाइट h. दिख रहा है सबको? Everyone can see this, right? Yes or no? Yes, sir. है ना. Yes. So in this case, I want to find what is new g, right? I want to find acceleration due to gravity at this point. This point is B. So I'll write it as g dash. So g dash will be g. Now, for this point, will the mass of Earth change? Tell me, will the mass of Earth change? No, sir. No, right? So mass of Earth is not going to change. Mass of Earth is this only, right? But what do you think about the distance from this point to this point, from O to B? What would be the distance now? Tell me. R plus h ka whole square. Yes or no? Awesome. Very good, God. Very good, Yes. Shant. Very good. Yes or no? Anyone have a doubt on this? No, sir. Okay. Now physics यहाँ तक खत्म हो चुका है. अब यहाँ से maths आएगा. ठीक है? तो थोड़ा सा maths देखो यहाँ पे. Right? Now I hope all of us know distributive property, common लेना पता है ना हम लोगों को? सबको पता ही नहीं पता है? Right? पता So can Yes. है ना. Very good. Can I take common from the denominator? मान लो मैं r स्क्वायर बाहर निकाल देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस h बाई r बचेगा.
Think about it. Yes or no? Is this clear? ये सबको समझ में आया? Maths Yes. है ना? So what is the GM by R square? What is this term? What is this term GM by R square? G naught. G naught. Awesome. Correct. Can I say that, sir? Oh, sorry. G dash is equal to G naught divided by 1 plus H by R ka whole square. Okay. So obviously, as height increases, acceleration due to gravity should decrease. Yes or no? हाँ या ना? ठीक है? किसी को दिक्कत है यहाँ पे? किसी को दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. ओके, इसका एक स्पेशल केस है, ये नोट कर लो सबको, मैं ऐसे नोट शेयर कर दूंगा, बट नोटेड डाउन, है ना? ये अपने टेक्स्ट बुक में ही साइड में लिख लो या नोटबुक में लिख लो, कहीं लिख लो। क्योंकि ये जनरल है, दिस इज जनरल, मैं इसका एक स्पेशल केस बता रहा हूँ, ठीक है? स्पेशल केस। अगर मैं तुमसे जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं एग्जांपल पे लिख कर रहा हूँ, एग्जांपल, राइट? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ऋषभ, we can solve but there's a special case, right? Okay, if there's no special case I cannot solve. तो मैं बता रहा हूँ पहले, जैसे एग्जांपल लिखो यहाँ पे, if like, or not this, right? ऐसे find, question is find acceleration due to gravity at height h is equal to, think about it, h is equal to 2r, h is equal to 2r above Earth's surface, above Earth's surface. Earth surface. तो इस केस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ? उस केस में क्या हो जाएगा? G is equal to what? Sim G naught by 1 plus H by R whole square. Now what is H? यहाँ पे H क्या है? Tell me, यहाँ पे H क्या है? 2R. 2R. Correct. So it will be what? G naught by 1 plus 2 का whole square, which is G naught by 9. So gravity will decrease 9 times. Yes or no? Okay. But अगर यही सवाल होता, अगर यही सवाल ऐसा होता, right? Instead of giving you above Earth's surface, अगर ये होता h is equal to r from the center of the earth, right? From center of the earth. हाँ मोहिल, ये एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूँ मोहिल, दिस इज एक्स्ट्रा टीचिंग, है ना? राइट? तो ये पूरा जो है ना, ये यहाँ पे वेरी गुड। तो इस केस में ना ये r प्लस, यस इन दिस केस h विल बी जस्ट r ना, हाँ है ना? समझ में आ रहा है? बिकॉज सेंटर से टोटल डिस्टेंस 2r हो गया है। गॉट इट? तो ये ध्यान देना है क्वेश्चन में, राइट? आइदर इट इज रिटन फ्रॉम अबव द अर्थ सरफेस और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, गॉट इट? है कि नहीं? तो यहाँ बताओ, यहाँ पे ये स्पेशल केस नहीं है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस, तुमको यही फॉर्मूला यूज करना है, तो स्पेशल केस कब आएगा? ठीक है, स्पेशल केस इज आल्सो ड्यू टू मैथ्स। तो लिखो स्पेशल केस, स्पेशल केस। ना स्पेशल केस ऑब्वियसली किसी स्पेशल केस में होता है, यस और नो, राइट? सो स्पेशल केस इज इफ h is very 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 less than r, ठीक है? And when you talk about Earth surface, R of Earth, पता है कितना है? 64, tell me, 1000 kilometers है ना? 64,000 kilometers, 6400 kilometers है? I don't remember. I guess it is 64. Radius of Earth is 6400 है शायद। हाँ 6400 है, my God, मैंने एक लड्डू एक्स्ट्रा कर दिया। Approx, right? I'm taking approx. It is not exactly this. It is like something related to this, right? Close to this. Okay, so 6400 किलोमीटर मैं जनरली कर रहा हूँ। तो अगर मान लो तुम हाइट ऑफ अर्थ ले रहे हो, फाइंड जी का सवाल पूछ रहे हो, फाइंड
राइट g, हाँ वेरी गुड शिफान, at h is equal to 1 किलोमीटर above this earth surface. मतलब 1 किलोमीटर 6400 के सामने क्या ही है, कुछ है क्या? टेल मी what is 1 kilometer height above earth 6400, right? obviously बहुत छोटा ही है कि नहीं? Yes, यहाँ sir. यहाँ पे मेरा स्पेशल केस लगता है, ठीक है? now this special case is actually due to maths. तो लिखो नोट में मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने बाइनोमियल देखा है ना, बाइनोमियल जो a plus b का होल स्क्वायर. सो इफ वी हैव 1 plus x power n, ध्यान दो, if 1 plus x power n is there, right, is any number, है ना, and if x is very less than 1, x बहुत छोटा है, so this can be written as, or this approximately can be written as 1 plus nx. ये नोट करके लिख लो, ये तुम लोग नेक्स्ट, नॉट नेक्स्ट ईयर, ये बाद में कभी पढ़ोगे, बट ये स्पेशल केस होता है, ठीक है, बाइनोमियल का, लिख लो ये चीज, ठीक है? कैसे होता है बाद में देखेंगे, बट ये होता है, ठीक है? हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो कि पावर ऐसा है 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/2 है, मान लो, राइट, और x बहुत छोटा है, x इज वेरी लेस, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस x/2 हो जाएगा, हाँ या ना? चल मी, Yes, sir. anyone have any doubt in this? ये सबको समझ में आ रहा है? ये मैथ्स है, this has nothing to do with physics, this is a maths, and I have already told you, right, physics without maths is meaningless, है ना, राइट? अगर कोई बोलता है कि उसको फिजिक्स पढ़ना है और मैथ्स नहीं पढ़ना है ना, तो बहुत दिक्कत है, इसलिए नीट वालों को दिक्कत होता है फिजिक्स में. मोस्ट ऑफ द नीट स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ मैथ्स, नॉट बिकॉज ऑफ फिजिक्स. ओके, तो ये नोट कर लो, ये नोट करके लिख लो, ठीक है, नोट करके लिख लो. ओके, अब देखो इसका यूज कहाँ है. अब हम यहाँ पे आते हैं फिर से अपना जी पे. तो व्हाट वाज आवर जी डैश? जी डैश वाज जी नॉट ब्रैकेट 1 plus h by r to the power 1 by to power 2, sorry, to the power 2, to the power 2, राइट? और हम सबको बचपन से पता है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, हाँ या ना? तो इसको हम ये लिख सकते हैं, यस और नो, 1 by x is equal to x power minus 1, यस और नो, और 1 by x square is x power minus 2. बचपन से हम लोगों ने ये पढ़ा है सर, क्लास 7th में पढ़ा था, तो हम कर सकते हैं, हाँ या ना? जनता जवाब देगी. Yes, sir. Awesome. Now if h is very less than r, if h is very less than r, don't you think that h by r will be very less than 1? That is a special case, na? Yes or no? Yes, sir. Hmm? Okay, right. So what can be written? Tell me, ये क्या हो जाएगा? This will be what? कोई बताएगा ये? G naught bracket 1. मैंने क्या बोला, इससे ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ से. Yes or no? Correct. Very good, Shivan. So it will be minus 2h by r. हाँ या ना? So this is the special case of formula. राइट? तो जनरली ना तुम कहीं कहीं देखोगे ना, तुमको ये फॉर्मूला दे देगा, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट. कहीं देखा है वर्षा, शिवांश, कहीं देखा है फॉर्मूला? यस ऑब्वियसली, अगर अगर इफ h इज कंपेयर्ड, इफ h इज कंपेरेबल टू r, मान लो h इज इक्वल टू r बाई 4 भी है, तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा. समझ में आया? नॉट एप्लीकेबल. Why not applicable? Because ये जो यूज किया हमने, ये जो यूज किया, दिस इज अप्रोक्सीमेशन. यस और नो? दिस इज योर अप्रोक्सीमेशन, है ना? और ये अप्रोक्सीमेशन कब यूज करते हैं? जब वो बहुत छोटा है.
टेल मी। सो ये समझ में आ गया, हाइट के हिसाब से समझ में आ गया। सो ये जो फॉर्मूला, आई विल जस्ट राइट इट डाउन अगेन, ठीक है। सो हमारे पास दो फॉर्मूला है। बेसिक फॉर्मूला क्या है, जी डैश इज इक्वल टू जी नॉट ब्रैकेट 1 प्लस h by r का होल स्क्वायर। दिस कैन बी used anywhere, used anytime, yes or no? And the second formula is g dash is equal to g naught, okay, my bad, g naught bracket 1 minus 2h by r, used only when h is very less than r। ठीक है, क्लियर है ये चीज, सबको समझ में आ रहा है ये? Yes. No. ओके तो ये तो हाइट हो गया, हाइट का समझ में आ गया सर, हमें हाइट का समझ में आ गया है। इशू जो है वो हाइट में नहीं है, ठीक है। अब सेकंड देखो, अब यहाँ पे आता है तुम्हारा दिमाग लगना शुरू होता है। तो कॉन्सेप्ट सेम है, दिमाग देखते हैं कौन लगाता है। नेक्स्ट इज वेरिएशन विथ डेप्थ, वेरिएशन विथ डेप्थ। अब तुम लोगों ने पढ़ा है ना कि सर नॉर्थ पोल साउथ पोल में ग्रेविटी चेंज हो जाता है, हाँ या ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. अब समझ में आया क्यों, क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है एक्चुअली में, यस और नो, है ना? राइट, Yes, sir. Yes, sir. है ना? ओके तो रेडियस ऑब्वियसली चेंज होगा, तो ऑब्वियसली जी डैश चेंज जाएगा, ठीक है। अब देखो वेरिएशन विथ डेप्थ, ना व्हेन टॉक अबाउट वेरिएशन विथ डेप्थ, सो फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड यही है, जी नॉट इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो अगेन अगेन डायग्राम बनाओ पहले, राइट, गोल तो बनता नहीं हमसे। ओके नाउ सपोज यू वांट टू फाइंड जी एट दिस पॉइंट, ये सेंटर है ओ और ये पॉइंट पे निकल रहा हो, दिस इज आर and this is actually h distance below earth surface, ठीक है, h distance नीचे है ये। now what, यहाँ पे मास सेम रहेगा क्या, you tell me, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मास सेम रहेगा क्या? क्या लगता है सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? थिंक अबाउट इट, सोचो। सर कम हो जाएगा। ऑब्वियसली कम होना चाहिए ना सर, क्योंकि हम यहाँ ले रहे हैं, तो यहाँ पे मास जो होगा वो तो सिर्फ इस इसके कारण होना चाहिए, इतना जो रेडियस है उसी कारण मास होना चाहिए ना, यस और नो? मास सिर्फ और सिर्फ इसके कारण होना चाहिए, अब समझ में आया, हाँ या ना? Yes. तो दिक्कत यहाँ पे यही है कि सर मास कम हो जाता है, ओके, दिक्कत ये है कि मास कम हो जाता है। तो जी डैश जो है, जी डैश इज एक्चुअली जी एम डैश बाई ये आर मान लो, दिस इज आर स्क्वायर, राइट, मान लो ऐसे। कोई डाउट्स में? आई गेस दिस इज क्लियर, दिस इज ये सब उसमें आ रहा है, ओके। Yes, sir. Now, एक चीज बताओ, will the density of any planet change? Usually, right? I'm not talking about exceptions. And in general, density जो object का होगा वो तो same रहेगा ना? Yes or no? Yes, sir. So, what was the formula of density, guys? What is the formula of density? Mass by volume. Correct. So, I can say the total mass m था by volume 4/3 pi capital R cube. Yes or no? So, छोटे वाले स्फेयर के लिए भी डेंसिटी सेम रहेगा, छोटे वाले स्फीयर के लिए भी डेंसिटी क्या होगा, सेम। सो इट विल बी m डैश, छोटे वाले स्फीयर का मास, बाई 4/3 पाई छोटे वाले रेडियस का क्यूब। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? रेज योर हैंड। जनता जवाब देगी, किसी को दिक्कत है? नो सर। क्लियर है ये चीज? ये तो सर डेंसिटी कॉन्सेप्ट तुम्हें पता था ना सर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब ना। ओके वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं पता है क्या? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, राइट, ये लिख लो। आई थॉट यू गाइज न्यू, राइट,
लिख लो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. गॉट इट शिवांश? गॉट इट? शायद 10th में है, मैं मेरे दिमाग से निकल गया कि ये तुम नहीं पढ़े हो. लिख लो ना, बस एक फॉर्मूला ही तो है. जैसे क्यूबॉइड का फॉर्मूला पढ़े हो ना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वैसे ही स्फीयर का वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, एनी इश्यूज इन दिस? यहां तक सबको क्लैरिटी मिल रही है? यस. ओके, बिकॉज अभी तुम मतलब भाई कैसे हो रहा है, मतलब अभी पहले क्या रट लेते थे, है ना, कि हाइट पे जाएगा कम हो जाएगा, राइट, डेप्थ में जाएगा तो पता नहीं चल रहा है कम होगा कि ज्यादा होगा, है ना. हाँ अगर तुमसे लॉजिकली पूछा जाए कि अगर तुम डेप्थ में जाओगे तो ग्रेविटी क्या होना चाहिए, कम कि ज्यादा? थिंक अबाउट ज्यादा. इट. ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा. मतलब सबको बड़ा ज्यादा होना चाहिए, है ना, क्योंकि सर डिस्टेंस कम हो गया तो ज्यादा हो जाना चाहिए. अब देखो एक्चुअली क्या होता है. सो g डैश इज इक्वल टू व्हाट इज m डैश? सर m डैश इज इक्वल टू, अब इस दोनों इक्वल है, इसको इक्वेट कर रहा हूं मैं. कैन आई डू दैट? कैन आई डू दैट? टेल मी. इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ ना, तो मैं इसको इक्वेट कर रहा हूँ. m डैश बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब is equal to capital M by 4/3 by capital R cube. तो m dash is actually equal to capital M by capital R cube into small r cube. Yes or no? मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया है. 4/3 पाई कैंसिल हो गया है, स्मॉल आर क्यूब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है. दैट्स ऑल आई एम डूइंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. अनमिता, चेतन, शफान, निखिला, सांकेतिक. Yes, sir. Okay, awesome. So now, can I just put the value of m dash over here? Can I just put the value of m dash over here? Which is capital M by r cube into small r cube, right? This is the value of m dash. और यहाँ पे small r square तो है ही, है ना? Okay. Now, what is g dash? तो मैं इसका यहाँ पे एक line draw कर दे रहा हूँ. ये separately है ना? तो g dash is equal to what? Sir, g dash is equal to sir r cube r squared. कट गया, यहाँ पे r बचेगा. तो g कैपिटल M by, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर r स्क्वायर कर लो, यहाँ पे r by r कर लो. अब ध्यान दो, अब देखो यहाँ पे व्हाट इज g कैपिटल M by r स्क्वायर? ये इसका फॉर्मूला क्या है? gm by r स्क्वायर क्या होता है? मैंने क्या किया, r क्यूब को r नॉर्मल. करेक्ट. तो can I just write like this? So it is g dash is equal to g naught. करेक्ट. और ये देखो ये r जो है, this r is what? So total capital R minus h is small r. Capital R minus h is small r by capital R. हाँ या ना? ध्यान दो, दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? यस. तो क्या आ गया सर? g dash is equal to g naught ब्रैकेट 1 minus h by r आ गया, है कि नहीं? अब बताओ हाइट के साथ g बढ़ रहा है घट रहा है? अब बताओ फॉर्मूले के हिसाब से. टेल मी नाउ. So g decreases, right, with depth. Got it? सेंटर पे आके जीरो हो जाता है. Got it? Because mass decreases, mass also decreases. Any issues in that? Right? Now, can I use this formula every time? Can I use this formula every time? For any value of h. Because इस फॉर्मूले में हम लोगों ने कहीं अप्रोक्सीमेशन यूज किया क्या? ये जब हम लोगों ने ड्राइव किया कहीं पे अप्रोक्सीमेशन यूज किया? टेल मी. नो सर. No, right? है ना? So since we did not use any approximation, है ना, this can be used for any value of h. Agree? हाँ या ना? Clear है? यस. Anyone have any doubt in this concept? समझ में आया? अच्छा लगा कि हाँ कुछ नया सीखे, कुछ मतलब ये सब चीज हम लोग याद कर लिए थे, अभी समझ में आया कि भाई कैसे हाइट के साथ हो रहा है, कैसे डेप्थ के साथ हो रहा है ना? एंड ग्रेविटेशन में ना और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, और क्योंकि हमारे पास टाइम है ना,
मतलब सिलेबस में बचा ही क्या है, हमारे पास टाइम है, पूरा जनवरी बचा है ना, तो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से पढ़ सकते हैं. ओके, राइट. So is this fine with you guys? Now is this clear? Right? Okay. Yes, sir. नेक्स्ट क्लास के लिए तुम लोग को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है. ऑब्वियसली तुम लोग को अपना मॉड्यूल तो एक बार सॉल्व करना ही करना है, बाय डिफॉल्ट वो करना ही करना है, और टेक्स्ट बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है. उसके अलावा मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है. राइट. सो नाउ गूगल मत करना, ऑनेस्टली स्पीकिंग. गूगल कर लो तो कोई पॉइंट नहीं है, मतलब गूगल बाबा से तुम देख के लिख लोगे ना तो कोई पॉइंट नहीं है ना. राइट. माई क्वेश्चन इज दिस, have you observed change in your weight, change in your weight on, or okay, not on okay, roller coaster or in a lift? जब लिफ्ट पे होता है तो अगर लिफ्ट मान लो जल्दी ऊपर जाता है नीचे आता है तो कभी फील किया हो कि हल्का लगने लगाता है, राइट, वेटलेसनेस Yes, फील sir. है ना, यस और नो, कभी फील किया हो? Yes, sir. So your assignment is to figure out why, okay, with mathematical explanation. ओके, मतलब फोर्स का इक्वेशन में क्वेश्चन बना